Greeting of the day. Today we will discuss about the next topic, that is income from other sources. This is the last and the residuary head of the income. Any income which is taxable under the act but does not find a place under the first four heads, which are salary, house property, profit and gain of business or profession, and capital gain, will be accessible under this head, that is income from other sources. Income from other sources can be classified into two categories. That are the income specified under section 56 subsection 2, or a specific income chargeable under this head of income, and second is other income that is chargeable under the head income from the other sources. Let's start in the detail about it. Income chargeable under the head income from other sources. Let's start in the detail. First of all, we are covering the some important terms which are specific income that is are chargeable under the head of income as per section 56 subsection 2. Number one is dividend. Dividend. Dividend is an income which is received by a person as a shareholder when he is investing in the shares. Dividend may be from the uh, in an ordinary language, dividend means the sum of amount which is received by the shareholder of a company on the distribution of its profits. In case of the dividend, dividend be received from the company, from the foreign company, domestic company, foreign company, or from a cooperative society. A dividend is a part of the other sources income, and the treatment is that if we are receiving a dividend from the Indian company, a domestic company, the entire amount is exempt from taxation. If we are receiving a dividend from the foreign company, the entire amount is taxable and it will be the part of the other sources. If we are receiving a dividend from the cooperative society, that is also taxable, and that will be showing the income under the head income from other sources. Uh, from the Indian company, we are considering as an exempt because Indian company already pay the tax on the dividend. So in India, we have no concept of the dual taxation. So in India, if we are receiving a dividend from the Indian company, that will be the exempt, but it will be come under the head other sources as a zero income. And second is about the winning from lottery, crossword puzzles, horse races, card games, other games of sort, gambling, betting of any other form or nature. So if we are receiving an income from this type of from the lottery, from the puzzles, from the horse races, from the games and the other things, the entire amount is uh, taxable under the head other sources. If a person is done a recovery of PF and the welfare fund contribution from employee by the employer, that will be considered as a other sources income. If the securities interest, if you have invested in securities and you are receiving an interest from there, securities has a two types. One is government security, another is a non-government securities. In a government securities, we have a two types of the securities. One is a tax free and another one is less tax. Tax free government securities are the tax free, and there is a no tax, and the entire amount is tax free, exempt from the taxation. If लेस टैक्स सिक्योरिटीज विच आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उसका जो भी हमारे पास इंटरेस्ट होगा द एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल. If we are discussing about the non-government securities, it is a two type of the categories. One is a tax-free, less tax non-government securities, and the tax-free non-government securities. Tax-free non-government securities are issued by the local authorities or a statutory corporation or a company in the form of debentures or a bonds. Really speaking, their interest is not a tax-free,
because tax due on interest is payable by the company or by the local authority. So whenever we are calculating the interest from the tax free non government securities, तो जो भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा उसे ग्रॉस अप किया जाएगा, उसे बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा बाय ग्रॉसिंग इट, और उसके बेसिस पे इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि ग्रॉसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सिक्योरिटीज है इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट होता है, तो वी आर टेकिंग दैट कि वी आर रिसीविंग 90%, तो उसका अब हमने 100% बनाना है, तो जितना इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ इनटू 100 डिवाइड बाय 90। Similarly, about the less taxed non-government securities, they are called taxable securities also. In this case, the security income tax is deducted at source uh, at the time of at that percentage जो जितनी भी हमारे पास इनकम होती है, और बाकी जो है शेयर होल्डर या जो भी सिक्योरिटी होल्डर है उसको ट्रांसफर कर दी जाती है। If you have an income from the machinery, plant or furniture, एंड इट इज नॉट अ योर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मशीनरी पड़ी थी घर में, मैंने उसको किसी को कह दिया किराए पे दे दिया, बट मेरा ये बिजनेस नहीं है, कोई प्लांट है कोई फर्नीचर है, बट आई हैव नो बिजनेस ऑफ दिस कैटेगरी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे जो उससे पैसे रिसीव होने वाले हैं, इनकम रिसीव होने वाली है, डेट विल बी अ माई अदर सोर्सेज इनकम। if amount received from the keyman insurance policy, that is also come under this head. If income from the subletting of the house property. अब what is the meaning of subletting? Subletting means कि आपने एक घर किराए पे लिया, आपने उस घर किराए वाले घर में से कुछ पार्ट किसी और को दे दिया, मतलब किराए का घर आगे किसी को आगे फर्दर रेंट पे दे दिया, एंड यू गेट अ बेनिफिट फ्रॉम दैट। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा घर लिया, पूरा घर रेंट पे लिया है 1000 में, ठीक है, आपने हाफ पार्ट क्या किया, किसी पर्सन को 600 में रेंट पे दे दिया, एंड यू गेट अ बेनिफिट ऑफ रुपीज 100। कैसे कि आप पूरा घर रेंट पे लिया 1000 में, तो हाफ का रेंट बना 500, बट आपने किसी और पार्टी को बेनिफिट कितने में दिया, 600 में, एंड दिस वे यू गॉट अ 100 एज अ बेनिफिट। तो डेट विल बी कॉल्ड योर सबलेटिंग इनकम। And the casual incomes and the non-recurring incomes are also part of the other sources. जैसे for example कोई lottery है, games है, puzzles है, उससे अगर कोई भी income होती है, that is called a casual income. And casual income को भी जो है other sources के अंदर हम consider करते हैं. If you are an insurance agent, तो in that case if you are receiving a commission from there, so that will be considered as a your other sources income. इफ यू आर रिसीविंग अ फैमिली पेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय द फैमिली पेंशन? देखिए जब एक पर्सन रिटायर होता है, जब तक जॉब में है गेटिंग अ सैलरी, जब वो रिटायर होता है ही गेटिंग अ पेंशन, बट इन केस ऑफ दैट पर्सन डेथ, तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं अगर उनको पेंशन रिसीव होती है ऑन द बिहाफ ऑफ डेट एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, डेट इज नोन एज फैमिली पेंशन। और जो फैमिली पेंशन है डेट इज कम अंडर अदर सोर्सेज, क्योंकि वो वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉय के घर वाले हैं और वो कंपनी है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो उसमें सैलरी हेड में नहीं आ सकती। और फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग अगर रूल्स की बात करें, जितना भी पैसा आपको रिसीव होता है या तो वो, या फिर 15 जो आपको उसमें कुछ एग्जाम्पशन मिलती हैं। एग्जाम्पशन क्या है? 1/3 ऑफ द पेंशन ऑफ रिसीव्ड जितनी भी हुई है, या मैक्सिमम 15,000, तो जो भी दोनों में से कम होगा डेट विल बी द एग्जाम फ्रॉम द टैक्सेशन। इफ you are a director in a company and you are charging a sitting fee as a director fee, so that will be known as your that is will be covered under your other sources income. If you are some bank accounts and you are earning interest from there, from the FD, from the saving account and from the other accounts, the entire interest which we receive from the bank deposit will be treated as your other sources income. तो जितने भी इंटरेस्ट हमारे पास हैं यहाँ पे, that will be considered as your other sources income. If you deposit with the companies, not with the banks, and you are getting an interest from there, that will be known as your other sources income. If you provided a loan to the second party and you are getting an interest from there, that will be treated as your other sources income. And income from undisclosed sources, undisclosed sources means जिसको आपने
शो नहीं किया हुआ। मान लीजिए आपका एक बिजनेस ही है, बट आपने उसकी बिजनेस की इनकम को अपने बिजनेस प्रोफेशन में शो नहीं किया हुआ, और बाद में टैक्सेशन डिपार्टमेंट वालों को पता चलता है कि आपकी ये अन एक सोर्स से इनकम है, बट आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो उससे जो भी इनकम होगी दैट विल बी कॉल्ड अनडिस्क्लोज्ड इनकम, एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज योर अदर सोर्सेज इनकम। और उसके ऊपर जो टैक्सेशन का रेट है वो भी बहुत हाई होता है अगर एक पर्सन अपने इनकम को अनडिस्क्लोज करता है। अगर if you are a MP, MLA and you are receiving a salary, MP MLA कोई भी बन सकता है, ठीक है, जिसे भी टिकट मिल जाए अगर जीत जाए तो गवर्नमेंट और MP MLA के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। तो MP MLA को जो भी सैलरी मिलती है डेट इज कम अंडर अदर सोर्सेस। Examinership fees from the non-employer, जैसे for example we are working under a college and also working under the university rules, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी हमसे पेपर चेक करवाती है एंड हमसे एग्जाम ड्यूटीज दिलवाती है, एंड वी आर गेटिंग एग्जामिनेशन के नाम पे हमारे पास कुछ फीस मिलती है, वी आर रिसीविंग अ रेम्यूनरेशन ऑन दैट बिहाफ, दैट विल बी ट्रीटेड एज आर अदर सोर्सेस इनकम, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम द यूआरपीएफ ऑन द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है जो एम्प्लॉय का खुद का शेयर होता है, दैट इज आल्सो कम अंडर द अदर सोर्सेज इनकम। इफ रेंट फ्रॉम द वैकेंट प्लॉट ऑफ द लैंड, मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट था, ठीक है, जब उस पे आप घर बना देंगे, उसको रेंट में देंगे तो वो तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बट आपके पास प्लॉट पड़ा है, आपने उस प्लॉट को जो है किराए पे दे दिया। मान लीजिए आपके घर के आसपास सब्जी मंडी लगती है, आपने कह दिया है रेडी वालों को कि आप यहाँ रेडीज लगा सकते हो, बट हमें आपको 100 रुपीज या 200 रुपीज पर डे देना पड़ेगा, एंड यू आर रिसीविंग द इनकम फ्रॉम दैट प्लॉट, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज योर अदर सोर्सेस इनकम। If you have an agricultural land that is outside India and you are earning from there, that will be you treated as your other sources income. If you have a some income tax refunds क्या होता है कि जब आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया था टैक्स डिपार्टमेंट को, और अब आप टैक्स डिपार्टमेंट से आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न आप उसको वापस ले रहे हैं, तो जब रिफंड वापस लिया जाता है और मान लो डिपार्टमेंट उसको लेट कर देता है तो वो आपको इंटरेस्ट पे करता है, तो वो जो भी इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा डेट विल बी योर इनकम, और वो किस हेड में आएगी, अदर सोर्सेज में। देखिए ना तो ये आपकी सैलरी की इनकम हो सकती है, ना बिजनेस की, ना कैपिटल गेन की, ना हाउस प्रॉपर्टी की, तो वो हमारे पास कहाँ आएगी, अदर सोर्सेज की। तो इन शॉर्ट वी कैन से जो चार हेड में इनकम हमारे पास कवर नहीं हुई वो यहाँ पे कवर होगी। इफ यू आर रिसीविंग अ रॉयल्टी इनकम जो कि बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आती, तो डेट विल कंसिडर एज योर अदर सोर्सेज इनकम। If you are receiving a guarantee commission to the directors, that will be covered under this category. Director commission for underwriting shares, gratuity received by director not as a employee, मतलब आप एक एम्प्लॉय नहीं है, एक एम्प्लॉय नहीं है बट उसको उसकी कंपनी फिर भी ग्रेचुटी पे कर रही है, तो डेट विल बी ट्रीटेड एज हिज अदर सोर्सेज इनकम। अब कुछ इनकम्स के बारे में हम बात करते हैं कि जो कि रिलेटेड टू अदर सोर्सेज है बट दे आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन। जैसे कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग अ 12 ईयर नेशनल सेविंग एन्युटी सर्टिफिकेट्स, द एंटायर अमाउंट इज एग्जाम्प्टेड। इफ you are depositing in the treasury saving deposit certificate, post office cash certificate, national plan certificates, post office treasure saving certificates, post office saving certificate, post office cumulative time deposit, if you are investing in these categories, the entire amount is exempt from the taxation. And the scheme of the FD, which is governing by the certificate rules of the 68 and the others, and the scheme of FD governing by the post office rules, 10.5 for tax-free bonds issued by the HDCO, and interest payable by the public company which is registered in India, and the main objective is that for providing a long-term finance, and the NRI bonds which are issued by the SBI। तो इनसे जो भी इनकम हमें रिसीव होगी डेट विल बी द एग्जाम फ्रॉम द टैक्सेशन, पर हम अदर सोर्सेज में इसको एज अ नील दिखाएंगे। इसके अलावा टैक्स फ्री बॉन्ड्स अगर हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के लेते हैं, NHPSC के लिए जाते हैं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स लिए जाते हैं, और इनसे जो भी इंटरेस्ट रिसीव होता है बॉन्ड्स जो कि लोकल अथॉरिटी या नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, द एंटायर अमाउंट इज एग्जाम्प्टेबल। तो अब बात आती है कि हमारे पास डिडक्शंस कौन कौन सी हमें
अलाउड नहीं है। मतलब देखिए जनरली तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए इन इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है, फॉर एग्जांपल मैंने डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट किया और उसके लिए मैंने मार्केट से लोन लिया था और मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो उसके खर्चे मुझे अलाउड हैं। बट अगर मान लीजिए मुझे कौन से खर्चे अलाउड नहीं हैं, जैसे कि कोई भी पर्सनल खर्चे, एनी इंटरेस्ट विच इज़ पेड आउटसाइड इंडिया और जिसमें टीडीएस नहीं डिडक्ट किया गया, कोई भी सैलरी, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट जो कि हम आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हैं बट उसमें हम टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे। और इसके अलावा अगर आप कोई लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स से इनकम अर्न करते हैं तो उसके जो खर्चे होते हैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने क्लियर कट डिफाइन कर दिया है फॉर अर्निंग द कैजुअल इनकम। तो उसके रिगार्डिंग जो भी खर्चे होते हैं वो खर्चे नहीं है। मान लो आपको कि मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी 1 लाख की एंड यू अर्न अ 2 लाख रुपीज, तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट कहेगा कि 2 लाख इनकम है, जो आपने 1 लाख खर्चा किया है वो खर्चा नहीं माना जाएगा, डेट इज नॉट अलाउड एज अ एक्सपेंडिचर। And the some important points related to this chapter is dividend from Indian company is exempt, as we already discussed that. Income from other sources to be assessed as per the accounting method by the SSC. Cash या accrual basis जो भी adopt करता है उसको ध्यान में रखा जाएगा। जो भी बोनस रिसीव किया जाता है are not taxable as a dividend in the hand of equity shareholders. If they are sold देन इट इज नोन एज अ कैपिटल गेन। अगर आपको बोनस शेयर मिले हैं, आप देखा जाए बोनस शेयर भी फ्री में मिले हैं, बट वो उसको हम अपना डिविडेंड नहीं मानते, उसको ये नहीं मानेंगे कि इनकम हुई है, बट जब उसको आप सेल करोगे तो उससे जो बेनिफिट होगा डेट विल बी नोन एज कैपिटल गेन। और जो भी लॉटरी डिविडेंड वगैरह होता है तो उसकी ग्रोस अमाउंट हम करते हैं नेट प्लस टीडीएस। इसके अलावा जो भी हमने पीपीएफ ऑन द मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी जो हमारे पास पैसा रिसीव होगा डेट इज नॉट ट्रीटेड एज अ इनकम। जब भी हमें एलआईसी से मेच्योरिटी के टाइम पैसा मिलेगा वो भी हमारे पास इनकम नहीं होगी। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, फ्रेंड्स, प्योरली ऑफ द पर्सनल नेचर, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है वो आगे हम पढ़ेंगे। कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट से अवार्ड मिलता है, इनकम टैक्स रिफंड मिलता है, बट इंटरेस्ट ऑन रिफंड इज टैक्सेबल। इसके अलावा हमारे पास जो है नॉन प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन इज गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एचयूएफ, शेयर फ्रॉम द फर्म, क्योंकि दे ऑलरेडी पे। अगर मान लीजिए सेविंग मेड बाय द हाउस वाइफ फ्रॉम द मंथली अमाउंट पेड बाय द हस्बैंड, तो डेट विल बी नॉट ट्रीटेड एज अ इनकम ऑफ द वाइफ। और इसके अलावा गिफ्ट्स आर नॉट इनकम्स। पर्सनल्स हैविंग अ income from other sources can choose method of accounting for the tax purpose। तो अगर सर्टेन यूटीआई से या म्यूचुअल फंड से हमें जो इनकम होती है वो भी एग्जाम्प्ट है। अब कुछ गिफ्ट की बात करें। अब कुछ गिफ्ट हो सकते हैं विदाउट कंसिडरेशन हमें रिसीव हुए हों। अगर हमें वो मनी रिसीव हुई है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन जो कि हमारा रिलेटिव नहीं है, तो विदाउट कंसिडरेशन मिली है, तो द होल अमाउंट, अगर अमाउंट 50,000 से ऊपर चली जाती है तो पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल होगी। अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है विदाउट कंसिडरेशन उस केस में भी यही रहेगा। एंड इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास जो अगर एक्सीड कर रही है फेयर मार्केट वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इफ एक्सीड 50,000 दैट विल बी टैक्सेबल। और तो हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में हमने जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है एंड द कंसिडरेशन है उसको हम कंसिडर करेंगे। कंडीशंस जो हैं विदाउट कंसिडरेशन, आपको रिसिप्ट जो इंडिविजुअल या एचयूएफ है जो भी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा रिसीव हुई है तो उस सिचुएशन के अंदर आपके के लिए वो इनकम ट्रीट होगी। और बट कुछ पर्टिकुलरली इनकम जो है विदाउट कंसिडरेशन जो है वो कंसिडर नहीं की। जैसे मान लीजिए आपको रिलेटिव से मिल रही है। रिलेटिव क्या है? एक इंडिविजुअल के लिए उसका स्पाउस, ब्रदर सिस्टर ऑफ द स्पाउस, ब्रदर सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स। तो हमारे पास जो है उनसे अगर आपको कोई भी इनकम मिलती है डेट विल बी द टैक्स फ्री। एंड अगर वो रिसिप्ट होती है, गिफ्ट रिसीव होता है, डेट इज नॉट कंसिडर्ड एज योर इनकम। और या फिर आपको मैरिज के ऊपर किसी से भी मिलती है तो मैरिज के ऊपर जो भी पैसा मिलता है डेट इज द गिफ्ट जो भी रिसीव होगा, जितनी मर्जी अमाउंट हो, डेट विल बी द टैक्स फ्री। अगर आपको विल के अंदर मिलता है या आपको इन कंप्लेशन ऑफ द डेथ ऑफ द पेयर और डोनर के बेसिस पे मिलते हैं, किसी लोकल अथॉरिटी से मिल रहा है, किसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन ट्रस्ट से मिल रहा है गिफ्ट, या एनी सम ऑफ मनी जो 50,000 से ऊपर नहीं है, तो डेट विल बी नॉट कंसिडरिंग एज अ इनकम। थैंक यू वेरी मच।